Hi everyone, it's me Ashit Yadav. Now today in this video we are going to discuss about the general organizations and life cycle of herd immunia and their affinities. And the important topic and the important questions from this topic is that is retrogressive metamorphosis in herd immunia that belongs to the Eurochordata. Okay, we will discuss in detail about this topic and we are going to see the syllabus that which part are already covered and which are going to be covered in these lessons and the previous year questions we will see that which type of questions are asking from this topic, so we will discuss everything in detail. So be with me, I will cover all the topics. Okay, so that's all, let us start. Here we go. First of all, we will look at the syllabus, that which part has covered and which are going to be covered in this lessons. Okay, so this is the syllabus of our subject. Okay, so we had already covered the origin and evolution of chordates and the bionomical general characters and classification of chordates up to orders of the following groups, that is Protochordata, Cycloostomata, Fishes, Amphibia, Reptile, Aves and Mammalia. These all are the topics that we had already covered in the previous videos, and the student who are new, who have not gone through these videos, they can first go and watch these videos that are helpful to them. Okay, so we in this video we are going to discuss about, this is the third topic A, that is the study of the following types that will be discussed in the Eurochordata, general organization and life cycle of herd immunia and their affinities. And whatever the questions framed from this topic, I had made in the chart of this of the previous year questions, that which are the topics that which type of questions are asked in the examinations from this topic. So we will discuss one by one from that questions. Okay, so in the next page, here we go. It is third point of the syllabus. Here I had written this topic, and here are the questions to be framed from this topic, as I had analyzed the previous year questions and then have remarked these topics. Okay, these questions that are asked in the examinations, that retrogressive metamorphosis, give an account of retrogressive metamorphosis in herd immunia, structure and life cycle of herd immunia, blood vascular system of herd immunia and affinities of life cycle of herd immunia. इस टॉपिक से हमने पूरी तरह से एनालिसिस किया था, जो 2012 से लेकर के 2020 तक का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है अपनी यूनिवर्सिटी का। तो इसमें पता चलता है कि हम लोग को मात्र इस टॉपिक से 4 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, जो कि दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके चारों क्वेश्चन को अगले अगले हर वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हम लोग का पूरा सिलेबस का होता है, जो टॉपिक का पूरा डेप्थ टू डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जो कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तो सब हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग लेकर चलेंगे, दैट इज़ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और इसका रेट्रोग्रेसिव मोर्फोसिस होता है जैसे हर्ड इम्यूनिया में जो यूरोकोइडेट आते हैं, इनमें क्या क्या होता है इनके बारे में हम लोग देखेंगे, और इनमें क्या क्या चेंजेज आते हैं इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन था, वही था, इसके बारे में आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से किया जाता है। तो पूछा गया है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और इसका अकाउंट पूछा गया है, जो कि मेटामॉर्फोसिस होता है हर्ड इम्यूनिया में, इसके मुताबिक आंसर देना था। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। तो पहला डिफिनेशन हम लोग मेटामॉर्फोसिस का होगा। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस रेफर्स टू चेंजेस दैट ए जुवेनाइल लार्वा अंडरगोज इन इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम लार्वल स्टेज टू एडल्ट स्टेज। जो कि लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में जो उनका चेंजेज होता है, जो भी इनमें जुवेनाइल स्टेज आते हैं लार्वा का, उसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस द लार्वा शो एडवांस्ड कोडेड कैरेक्टर्स विच आर लॉस्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड द एडल्ट इज डिजेनरेटेड विद प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जो कि लार्वा होता है वो एडवांस कैरेक्टर शो करता है, जो कि डेवलपमेंटल स्टेज में वो लॉस हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाता है, और एडल्ट स्टेज आते आते वो पूरी तरह से वो कैरेक्टर विलुप्त डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस इन यूरोकोइडेट, दैट इज इन हर्ड इम्यूनिया। जो इसी प्रकार का जो रेट्रोग्रेसिव होता है मेटामॉर्फोसिस जो यूरोकोइडेट्स की हर्ड इम्यूनिया में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर कि जो फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा होता है उसमें एडवांस कैरेक्टर शो करता है, जो कि लॉस हो जाता है मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में, और एडल्ट में पूरी तरह से डिजेनरेटिव कैरेक्टर को शो करता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ हर्ड इम्यूनिया और डिप्रेसिंग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस तरह होता है, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, हर्ड इम्यूनिया क्या है भाई, वो हर्माफ्रोडाइट एनिमल है जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें कोई भी प्रोटोजेनी उत्पन्न नहीं होता है। तो फीमेल गैमेट होता है वो पहले ही मैच्योर हो जाता है, जो स्पर्म से पहले ही मैच्योर हो जाता है, और ये सी वाटर यानी कि समुद्र के पानी में ये छोड़ दिया जाता है फीमेल मेंबर द्वारा। ठीक है, इसमें कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, जिसमें कि जाइगोट और इसका बहुत ज़्यादा होलोब्लास्टिक बॉल, जिसको ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होता है। इनमें क्लीवेज कौन सा होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, और जो ब्लास्टूला होता है उसमें ब्लास्टोसेल प्रेजेंट होता है, अपर लेयर उसको हम लोग माइक्रोमियर्स कहते हैं, और लोअर सेल को हम लोग मेगामियर्स कहा जाता है।
द फॉर्मर लेयर ऑफ इक्टोडर्म वाइल एंटीरियर फॉर्म्स इंडोडर्म। जो फॉर्मर लेयर होता है वो इक्टोडर्म का निर्माण करते हैं और जो इंटीरियर अनदर फॉर्म होता है वो इंडोडर्म का निर्माण करते हैं। जो ब्लास्टुला होता है वो गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन करता है ईपीबोली के द्वारा, ठीक है। और डिवीजन होता है माइक्रोमियर्स का, उसमें एक इन्वेजिनेशन होता है जो ब्लास्टोसोल में, और उसमें आर्चेंड्रोट्रॉन होता है वो फॉर्म्ड होता है जो कि ब्लास्टोपोर में ओपन हो जाता है, ठीक है। द ब्लास्टोपोर्स बिकम्स क्लोज फॉर द फॉलोइंग फर्दर डेवलपमेंट। जो ब्लास्टोपोर होता है क्लोज होता है और फिर से वो आगे के लिए डेवलपमेंट के लिए वो रेडी होता है, ठीक है। द गैस्ट्रुला इंक्रीजेज इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। गैस्ट्रुला होता है इंक्रीज करता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, जो कि डॉर्फल सरफेस होता है वो बिकम्स फ्लैटेंड हो जाता है और वेंट्रल सरफेस होता है वो कॉर्टेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और आफ्टर सब्सिक्वेंट चेंजेस, इतने सब चेंजेस होने के बाद जो गैस्ट्रुला होता है वो लार्वा में डेवलप हो जाता है, जिसको कि हम लोग स्कैंडियन टेडपोल लार्वा कहा जाता है, ठीक है। और देखते हैं मेटामॉर्फोसिस इन द टेडपोल लार्वा। जो भी मेटामॉर्फोसिस होता है इनके बारे में जानते हैं हम लोग। रेट्रोग्रेसिव चेंजेस देखते हैं किस प्रकार के चेंज होते हैं। दिस चेंजेस इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शंस एंड डिसअपेरेंस ऑफ सम ऑफ द लार्वल स्ट्रक्चर सच एज फॉलोज। जो ये चेंज आते हैं जिनमें कि डिस्ट्रक्शन होता है और इनका डिसअपेयर हो जाता है, जो कि लार्वल स्टेज होता है, स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाता है, यानी कि विलुप्त हो जाता है, जिस प्रकार इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। लॉन्ग टेल ऑफ लार्वा विथ काउडल फिन शॉर्टेंस एंड फाइनली डिसअपेयर्स। जो लॉन्ग टेल होता है लार्वा का जिसमें काउडल फिन्स होते हैं शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है और वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाता है। काउडल मसल्स होता है या फिर नर्व कॉर्ड होता है और नोटोकॉर्ड होता है डिसअपेयर हो जाता है और इज द ब्रेक डाउन एंड आर कंज्यूम्ड बाय फैगोसाइट्स। और ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं और फैगोसाइट द्वारा उसको कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। लार्वल सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि ओसियलस और द ओलिगेथो होते हैं, जो कि लोस्ट होते हैं सेंसरी वेसल्स में, जो कि ट्रांसफर हो जाते हैं एडल्ट सेरेब्रल गैंग्लियन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको हिंदी बता दे रहे हैं, चलिए हम एक बार इंग्लिश पढ़ के फिर हिंदी बताएंगे, ऐसे से आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं। एडेसिव पेपिला डिसअपेयर कम्प्लीटली। एडेसिव पेपिला होते पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। एंटीरियर रीजन बिटवीन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एडेसिव पेपिला एंड माउथ शोज रैपिड ग्रोथ। जो एडेसिव पेपिला होता है जो कि एडेसिव रीजन होता है, जो कि पॉइंट होता है अटैचमेंट का, जिसको एडेसिव पेपिला कहा जाता है, और माउथ का जो कि रैपिड ग्रोथ उसमें पाया जाता है, ठीक है। विच ओरिजिनल डोर्सल साइड विथ एडिटोपोर स्टॉप्स ग्रोथ। जो कि ओरिजिनल डोर्सल साइड होता है उसमें एडिटोपोर होता है वो ग्रोथ करना स्टॉप करे, ग्रोथ नहीं होता उसमें, रुक जाता है। दिस काउजेज शिफ्टिंग ऑफ माउथ थ्रू 90 डिग्रीज। जो कि इसके कारण माउथ होता है 90 डिग्री वो शिफ्ट हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से डायरेक्शन माउथ का चेंज हो जाता है बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। देयर फॉर द फाइनल ब्रांचियल एंड आर्टियल अपरेचर्स इन द एडल्ट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल एंटीरियर एंड डोर्सल साइड ऑफ द लार्वा। जो कि फाइनल ब्रांचियल होता है या फिर आर्टियल अपरेचर होता है, जो एडल्ट रिप्रेजेंट क्या करता है, वो ओरिजिनल एंटीरियर और डोर्सल साइड को वो लार्वा का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। And the last, that is the conclusion, that why this retrogressive process happens, and after the retrogressive process what are the similar changes that occurs in the herdemania. We will see that conclusion. As a result of retrogressive metamorphosis, free swimming proto-positive and geo-negative tadpole excidian, which is more advanced in the grade of organization, changes into a fixed inactive geo-positive and photo-negative simple adult. जो कि रिजल्ट होता है, जो कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होने के बाद जो फ्री स्विमिंग और फोटो पॉजिटिव और जियो नेगेटिव टेडपोल एक्सिडियन होता है, जो कि मोर एडवांस रहता है, जिसमें कि मोड ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत एडवांस होता है, वो चेंज होकर के वो फिक्स्ड हो जाता है और इनएक्टिव जियो पॉजिटिव बन जाता है, जो कि फोटो नेगेटिव होता है। यहाँ फोटो क्या था, पॉजिटिव था पहले, वो फोटो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और जियो नेगेटिव था पहले, तो जियो पॉजिटिव हो जाता है, सिंपल एडल्ट बन जाता है ये, ठीक है। The coded characters, notochord and nerve cord and spinal sense organs present in the larva completely lost in the adult. जो भी लार्वा में कोडेड का कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और स्पाइनल सेंस जो प्रेजेंट होते थे, वो एडल्ट में आते आते पूरी तरह से कम्प्लीटली लॉस्ट, पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। So that's all was the answer of the first questions. So in the next session we will take the another questions that from this topic, okay. And after watching these lessons, still you have any type of queries regarding this topic, you can ask me in the comment sections. I will happy to help you. That's all.